Okay. Now listen, we have to start with this general organic chemistry. Certain question we'll do based on acid base properties. Okay? Acid base properties, and then we'll start with isomerism. Now, listen. In acid base properties, just a particular question here. Benzoic acid, acetic acid, carbonic acid, phenol, water, and alcohol. You have to arrange these molecules in terms of their acidic nature. So this will be like A, this will be B, this will be C, this will be D, E, and F. Now you have to arrange these molecules according to their acidic action. How will you do that? See, whenever you have the atom attached to the same hydrogen attached to the same atom, for example, here all of you can see that. Hmm? This hydrogen attaches attached with oxygen, hydrogen attached with oxygen, hydrogen here also attached with oxygen, here also hydrogen attached with oxygen, hydrogen attached with oxygen, hydrogen attached with oxygen. If the donor, if the attaching atom is same, right? Now what you have to do here? Remove H plus and check the stability of remove H plus, check the stability of which charge? Negative. Negative charge. Now understand one thing here. Suppose I have an acid HA. If I want to prove the acidic nature of HA, what should I do? I'll remove H plus and I'll check the stability of this negative charge, correct? If this negative charge is stable, then A minus will form in large amount, yes or no? Yes. If it is forming in large amount, that means H plus also comes in a large amount. Yes. That means HA will be a, if it is giving large amount of H plus, it will be a strong or weak acid. So, So let's say the acidic nature of acid is directly proportional to stability of A minus. How to check the stability of negative charge? How to check the stability of negative charge? To check the stability of negative charge, what is the thing you will do over here? Or per se, if you want to check the stability of any charge, whether it is positive or whether it is negative, what is the thing you will do? If I want to check the stability of negative charge, the amount of negative charge should be less or high. Yes. It should be less. And amount of positive. If I want to check the stability of positive charge, the amount of positive charge should be again less. Understand? Yes. Yeah. Now understand one thing. I want to check the acidic nature over here. Now, what I'll do, I'll remove H plus and I'll study the stability of that negative charge. So after removing H plus, I'll be getting O minus. Any doubt in this? no. Very good. If I'm removing H plus, I'll be checking the stability of this O minus, correct? H2CO3 structure is like this, carbonic acid. I have OH, OH, O. I'll remove H plus from this point and I'll put O minus. For phenol, I remove H plus. I'll check the stability of negative charge, correct? Yes. Again, OH minus, remove H plus, check the stability of negative charge. Again, RO minus. Any doubt in that? No. Now tell me where the negative charge is most stable.
HO. हाँ जी, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा ये? सी, I have a pi bond, a negative, pi sigma negative. What is this? A pi bond and a sigma bond and a negative charge. What is this? Resonance. Very good. Pi sigma negative. What is this? Resonance. Pi sigma negative. What is this? Resonance. Pi sigma lone pair. What is this? Pi sigma lone pair. What is this? This part. The pi sigma negative is resonance, right? Pi sigma lone pair. What is this? Again resonance, right? The lone pair also donate. Correct. Correct. Yes, sir. Pi sigma negative resonance. I don't have any resonance over there. Correct. Hydrogen is behaving like a neutral molecule. Alkyl group is showing inductive effect. Any doubt in that? No. Very good. Now just tell me one thing. If I want to check the stability, now tell me this negative charge will be withdrawn by C double bond. What is the nature of C double bond? What is the nature of C double bond? Will it be electron withdrawing or electron donating? C double bond. Withdrawing or donating? C double bond. Withdrawing. Withdraw. C double bond withdrawing. So negative charge will be withdrawn by C double bond like this. Getting it? Here also negative charge will be withdrawn by C double bond but one stupidity happens here, that this C double bond already accepting the electron from oxygen, right? Yes, sir. So if it is already accepting the electron from oxygen, is it possible for this C double bond to accept the electron from this negative charge to a larger extent? No. No. Acha, here this negative charge is getting delocalized on the benzene ring and I'll be getting 5 canonical structures. How many? 5. And if you check the stability or if you check the resonance, now here O minus is getting delocalized on which bond? C double bond C or C double bond O? C double bond C or C double bond O? What is that? C double bond O minus pi sigma negative. When the negative charge is getting delocalized on a pi bond, shall I say this is nothing but normal resonance? It is not like Sir. special like mesomerism where a strong electron withdrawing group is involved. Correct? Yes, sir. Now tell me C double bond C will withdraw negative charge more strongly or C double bond O will withdraw the negative charge more strongly? C double bond. So tell me, fine. So among these, shall I say this is the least acidic among these four? Yes, sir. Very good. Now people say that, sir, we have a cross conjugation here. Still, I'll be saying C double bond is electron withdrawing group. Even if it is having a cross conjugation, it will be better electron pulling as compared to C double bond C. Getting my point? Yes, sir. कि क्रॉस कॉन्जुगेशन होने के बाद भी तुम्हारा ये चीज ज्यादा सुपीरियर रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस. अंडरस्टूड? गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा. हाइड्रोजन न्यूट्रल है, हटा दो. आर का क्या इफेक्ट रहता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप ओवर देयर? इट इज Plus I. electron donating, right? Plus I. So negative charge will decrease or will it increase? Will it increase or will it decrease? Increase. If it is increasing, will it be like most stable or least stable among them? Least. Least stable. Now you tell me all this point. These four are more acidic than these two. RO minus is least stable, so ROH is least acidic. So shall I say water is more acidic than alcohol?
and phenol is more acidic than water, but I have to just compare between them. Huh. Here I do have normal resonance. Here I have cross conjugation. Now normal resonance is better or cross conjugation is better? Normal resonance is better or Cross con. now? If this C double bond O already takes electron from this oxygen, is it possible for this C double bond O to take a large amount of electron from this negative charge? No. No. So which is more stable? This O minus or cross conjugation one O minus? Normal. Now understand one thing here. Tell me the acidic order. Now just leave these two. Among these four, just tell me which is most acidic. Phenol. Which one? Which one, beta? Phenol. What I told you, that normal resonance or mesomeric effect, because here negative charge is Normal resonance. which one? Listen, here O minus is getting delocalized on pi bond, C double bond C. Here O minus is getting delocalized on C double bond O. So which will draw electron more strongly, C double bond C or C double bond O? Even if it is having cross conjugation. C double bond. Yeah, so which negative charge is more stable, phenol one or carbonic acid one? Carbonic acid. That's what. So which is more acidic? H2CO3. H2CO3. Now understand that we got this order right now, that H2CO3 is more acidic than phenol. Phenol is more acidic than water. Water is more acidic than alcohol. Any doubt in this? No. Very good. Now understand one thing here. I'll just compare between carboxylate ion or acetate ion. Now how to do that? Tell me, people think that in carboxylate ion or in, let's say, normal, this is benzoate, this is normal carboxylate ion, ठीक है यार? बेंजोइट के अंदर कुछ दिख रहा है क्या, मतलब कुछ हो सकता है क्या एक्स्ट्रा? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनाओ, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये जो रेजोनेंस है दोनों साइड सेम है कि अलग अलग है? Same. Same. सेम है, राइट? अच्छा, और कुछ हो रहा है क्या इधर? आई एम जस्ट आस्किंग. No, sir. अरे जो अलग ग्रुप है उस पर फोकस करो. ये जो बेंजीन लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये रेजोनेंस करेगा? पाई सिग्मा पाई. हाँ. अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन. Yes. ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, अगर बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या सी डबल बॉन्ड ओ माइनस से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इजिली? जस्ट द क्वेश्चन. नहीं. अच्छा, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस साइड से, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा, ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? बेंजोइट वन और कार्बोक्सिलेट वन? Benzoic. बेंजोइट वन. हाँ, Carboxylate. कार्बोक्सिलेट के अंदर ये सी डबल बॉन्डो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या ये सी डबल बॉन्डो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या इजिली? No. नहीं ना. Now that's what I'm asking, which is like more stable according to your perspective, benzoate or carboxylate? Carboxylate.
हाँ, अब चक्कर क्या है, होता उल्टा है। ये इसका स्टेबिलिटी है, होता क्या है, एग्जैक्टली उल्टा, करेक्ट। ओके। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर मैंने रेजोनेंस किया तो क्या होगा, मेरे पास इस टाइप का आयन बनेगा, करेक्ट। यस। नाउ अंडरस्टैंड दैट कार्बन पे 2 O- लगे हैं, गेटिंग इट। ये जो 2 O- आयन्स होते हैं ना, इसे डायनियन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनियन कॉम्प्लेक्स। पर एक बात बताओ, अगर एक ही कार्बन पे 2 नेगेटिव चार्ज लगे तो देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज 2 O-, राइट। यस। इतनी ज्यादा रिपल्शन होती है कि ये मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो क्या ये वाला रेजोनेंस होगा? नहीं। हाँ, तो हमें ना ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन करना ही नहीं है। तो मतलब देखा जाए ना, ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ डायनियन कॉम्प्लेक्स रहता है वही बेंजीन के ऊपर। दूसरी चीज होता क्या है फाइनली, तो ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसमें एक पी ऑर्बिटल इस प्लेन में रहता है, दूसरा पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। तो क्या वो रेजोनेंस कर पाएंगे? और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ऐसा रोटेशन होता है, गेटिंग इट। यस सर। जिसके अंदर बेंजीन एक प्लेन में रहेगा, इस वाले प्लेन में, और कार्बोक्सिलेट आयन दूसरे वाले प्लेन में रहेगा। जब प्लेन्स परपेंडिकुलर होते तो रेजोनेंस नहीं होते। नहीं होता। गॉट इट। तो भाई साहब, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो फर्क कैसे पता लगेगा? जब रेजोनेंस नहीं हो रहा, दूसरा ऑल्टरनेटिव है तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा, तीसरा ऑल्टरनेटिव है इंडक्टिव, करेक्ट। यस। यार एक बात बताओ, फिनाइल रिंग जो है इट इज प्लस आई और माइनस आई? माइनस। तो विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज। CH3 इज प्लस आई और माइनस आई? Yes. हाँ, तो विल गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस नेगेटिव चार्ज। यार ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल? कौन सा ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट। हाँ, बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल, करेक्ट। यस सर। तो अगर ऐसा तुमको पता लग गया कि बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो normal carboxylic acid and stronger will be benzoic acid. Any doubt? नो सर। चलो ग्रेट। अब एक काम करो, कुछ चीजें हैं वो लिख लेना, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आया। यस सर। ओके, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डजेंट मैटर, आई विल फॉरवर्ड यू द वीडियो, ठीक है। चले आगे। हाँ सर। चलो ग्रेट। नाउ व्हाट आई वांट हियर, you should write the acidic order properly. देखो, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, देखो फर्स्ट नॉर्मल एसिडिक ऑर्डर करते हैं। अभी हमने हमने ये सीखा कि बेंजोइक एसिड जो है ना वो ज्यादा एसिडिक है किससे? कार्बोक्स। एनी अदर रैंडम कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। गेटिंग इट? तो ओके। फॉर्मिक एसिड एक लौता कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। अदरवाइज बेंजोइक एसिड जो है ना वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। ना नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है, ये हमने अभी किया क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से। एंड ये तुम्हारा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। ये तुम, फिनॉल क्या होता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, और वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो वाटर जो है ना वो किसी भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, एक्सेप्ट मीथेनॉल। मीथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। नाउ एनी अदर अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन,
Acetylene is more acidic than ammonia. ऐसा क्यों? Because sp hybridized carbon is more electronegative as compared to sp3 hybridized nitrogen. उसके बाद तुम्हारा एल्कीन आता है एंड देन लास्ट में एल्केन आता है. यू अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर एसिडिक ऑर्डर. ये एक यूनिवर्सल ऑर्डर है और ये तुमको पता होना चाहिए ताकि यू कैन गिव नाइस आंसर्स, राइट? Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. ओके, तो गाइस वी विल मूव अहेड नाउ. लिख लिया ये? This acidic order should be known to you, and it is a very prime area from where they are asking the questions. Getting it? Okay. Very good. Shall we move ahead? Yes, sir. Okay. Now listen. Question. Acidic nature of phenols. You have to tell me which phenol is more acidic, which phenol is less acidic. Okay? I have OH. I have an electron withdrawing group attached to the para position NO2. I have OH. I do have a electron withdrawing group attached to this OH at para position, that is SO3H. Will withdraw the electrons. Again, OH is attached to electron withdrawing group, that is COH. Again, OH is attached to electron withdrawing group, let's say CHO. Again, OH is attached to electron donating group, or make it like withdrawing only, by halogen. ठीक है. And this is A for apple, B for buffoon, C for I don't know, D for I don't know, E for I don't know, F. I do have OH attached with CH3, and I do have OH attached with OCH3. Any doubt? E, F, G. Listen, guys. Please try this question out and just give me the answer. It's a very important thing. Listen to it clearly. We are talking about electron withdrawing nature, right? We know that NO2 minus M is more than, what is it? SO3H, correct? Yes, It sir. is Yes, more sir. than COH. CHO. It is more than C double bond OH. Beta, in C double bond OH, there is, what is that? Cross conjugation, right? Is it, if this C double bond is already accepting the electron from this oxygen, is it possible for this C double bond to accept the electron from some other pi bond or negative charge easily? No. So its electron withdrawing tendency get decreased, right? Yes. Now understand that it is better than halogens, because in halogens its minus I effect is more than plus R, correct? यार Yes, sir. हैलोजेंस के केस के अंदर मुझे पता है कि लोन पेयर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है. बट चक्कर क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है वो इसके माइनस आई से क्या है, क्या है? Common. गेटिंग इट? Okay, where I was, in case of halogen its plus R effect is less than minus I, correct?
नाउ अंडरस्टैंड दैट, तो हैलोजन का डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है कि एक्सेप्टेंस टेंडेंसी ज्यादा है? क्या चीज ज्यादा है हैलोजन के केस के अंदर, एक्सेप्टेंस या डोनेशन? Accept. एक्सेप्टेंस। तो इट इज ओवरऑल वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हैलोजन्स के बाद व्हाट यू हैव टू डू हियर, डोनेटिंग ग्रुप पे आते हैं। या एक बात बताओ, मिथाइल इज अ डोनेटिंग ग्रुप, करेक्ट? It is donating the electron by resonance or by hyperconjugation? Hyperconjugation. Very good. And hyperconjugation is better electron donor or resonance is better electron donor? Hyperconjugation. Eh, which Sorry, resonance. resonance donates more electron than hyperconjugation. So it is donating as compared to this hyperconjugation stuff, correct? Yes, sir. Very good. Now understand. In this particular question, there is a trick involved, and these guys know will give you these kind of tricks only, and it is very important for you to understand that particular aspect. See what generally student does. He remove the students remove H plus and put a negative charge, right? Sorry, they put a negative charge. Okay. So they removed H plus, put a negative charge. They remove H plus, put a negative charge. They removed H plus, put a negative charge. Negative charge, negative charge. They removed H plus, put a negative charge. They removed H plus, put a negative charge. Now understand one thing. They check the stability of this negative charge. Correct? In order to answer this particular question. Agreed? Yes. Yes, sir. Guys, just tell me one thing. If in a molecule there are two acidic hydrogen, one is very strong, other is very weak. So the acidic nature of that compound will be governed by strong acid or a weak acid. एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक बहुत ज्यादा एसिडिक है और एक कम एसिडिक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो पहले कौन सा H प्लस देगा, जो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है? अरे बोलो। ज्यादा। अगर ज्यादा एसिडिक है तो जो मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करता है कि वीक एसिड डिसाइड करता है? Strong. स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करता है। एक बात बताओ, यहाँ पे OH है, OH है, OH है, हर जगह OH है, बट यहाँ पे SO3H है, यहाँ पे COH है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, राइट? सर। हाँ, और दूसरी चीज सल्फोनिक एसिड तो और ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। गेटिंग इट? यस सर। सल्फोनिक एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इट विल बी लाइक दिस, करेक्ट? चले से H2SO4 के अंदर भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। हाँ सर। तो यार ये जो H2SO4 है उसी की तरह ये बिहेव करता है ना। यस सर। इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो नाउ यू जस्ट टेल मी अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस which will be like most acidic among them? SO3H. SO3H। उसके बाद Carboxylic acid. very good. Now I don't have any other acidic hydrogen anywhere, right? Now Sir. I have to go by normal electronic effect. Hey, NO2 electron donating or withdrawing? Withdrawing. If it is electron withdrawing, what charge it will produce at the ortho and para position of benzene? Positive. So will produce positive charge at the ortho and para position of benzene, and this positive charge will neutralize the amount of negative charge which I'll be getting on oxygen after loss of H plus. Yes sir. So this positive charge stabilizes the negative charge to a larger extent. What is the nature of CHO? Withdrawing. Again I'll get a positive charge at the para position, right? If I'm getting a positive charge on the carbon containing O minus, so this O minus will be stabilized by this positive charge. Yes. Very good. So if I'm getting O minus over there after loss of H plus, direct stability. Now halogen, what will produce at the ortho and para position? Positive. Negative, but its minus I effect is? Minus I Weak. effect is? हाँ, क्या क्या दोबारा बोलो, minus I effect is? Weak.
अभी क्या बोला था, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आर से हैलोजन के केस के अंदर, गेटिंग? हाँ, तो विल इट विदड्रॉ, विल इट डोनेट? इल ओवरऑल विदड्रॉ, करेक्ट? तो यहाँ अच्छा, पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा कि डीस्टेबलाइज करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा कि डीस्टेबलाइज करेगा? अगर यहाँ पे हैलोजन विदड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो stabilize, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन। donating, वेरी गुड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। yes, yes, sir, और ये क्या है? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन। donating, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑन द कार्बन कंटेनिंग OH, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई डाउट? yes, तो एक बार बताओ, एक बार नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, yes, ये वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाले नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा हो गया? resonance वाला, रेजोनेंस वाला। OCH3 वाला या CH3 वाला? OCH, वेरी गुड। नाउ मुझे बताओ एसिडिक ऑर्डर इन सब का। NO2 क्या आएगा अभी? इस पे क्या डालूं? third, वेरी गुड। आगे? CHO, वेरी गुड। आगे? Cl, Cl, आगे? CH3, CH3, ओके। आगे? OCH, O6. नाउ अंडरस्टूड द Yes, लॉजिक। sir. आज के बाद गलती करोगे क्या इसमें? एंड प्लीज मेक श्योर द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे और तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट? एसिडिक कौन सा ज्यादा है? हाँ, ज्यादा एसिडिक कौन सा है? गाइस डन, आगे चलें। Yes, sir. yes, sir, Now this is the last question in GOC which we'll be doing today, and after that what we'll be doing, we start with the isomerism part, ठीक है? Okay. No, ठीक है। Now listen here. You have to arrange the basic order of amines. Like, so I want to arrange the amines in their basic character. ठीक है? So let's say मेरे पास है NH2, NH, pyridine. So A, this is B, this is C. Let's say I have CH3, C double bond O, NH2. This is D. I do have CH3, C double bond NH, NH2. This is E. This is F. Getting it? Getting it? So I have to Okay. arrange these molecules according to their basic action. You want to give a try? Yes, sir. Try it out. इस क्वेश्चन के अंदर ना तुमको दो या तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर कोई तुमसे पूछे यार नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास न्यूट्रल नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? न्यूट्रल नाइट्रोजन और नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन? Neutral. Sorry, negative charge. Negative, sir. Negative charge, right? It'll accept H plus more readily as compared to neutral one, correct? So this is more basic. Any doubt? Yes. अच्छा, No, sorry. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार एक अमीन है, दैट इज एरोमेटिक अमीन, एनिलीन,
और मेरे पास एक नॉर्मली प्राइमरी अमीन है जो कि एलिफैटिक अमीन है, ठीक है। नाउ एरोमेटिक अमीन और एलिफैटिक अमीन में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? देखो, बेसिक होने के लिए जो बेस है उसको क्या एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? अगर मैं बेस हूं, या तो मैं OH माइनस दूंगा, ठीक है, या तो मैं H plus लेगा। H प्लस लूंगा, H ठीक plus. है। अगर मुझे H प्लस लेना है तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? If I want to extract H plus, the amount of negative charge over me should be More. more, ठीक है। तो जिस नाइट्रोजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज्यादा बेसिक होगा। Yes, sir. नाउ टेल मी, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, For that. वेरी गुड। उल्टा ये फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर की वजह से इट इज एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। एनी डाउट? No. नो। सो यहाँ पे जो लोन पेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? Come. वेरी गुड। तो ज्यादा लोन पेयर ज्यादा बेसिक या कम लोन पेयर ज्यादा बेसिक? ज़्यादा लोन पे ज़्यादा बेसिक. चलो, एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स, करेक्ट। Yes, sir. अब उसके अंदर भी ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम लोगों ने ये देखा होगा कि तुम्हारे के पास एक ऑर्डर आया है। एक मिथाइल अमीन है, एक तुम्हारे पास डाई मिथाइल अमीन है, और तुम्हारे पास ट्राई मिथाइल अमीन है, करेक्ट। Yes. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अब जो बेसिक नेचर चेक करना होता है इनके बीच में, मिथाइल अमीन के बीच में, देयर आर टू थ्री फैक्टर्स रादर यू गिव इंपॉर्टेंस टू। वन इज योर इंडक्टिव, दूसरा जो है वो तुम्हारा हाइड्रेशन होता है, और जो तीसरा फैक्टर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से टर्शरी जो है इल बिकम मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी बिकम मोर बेसिक देन प्राइमरी। हाइड्रेशन से उल्टा होता है। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस से टर्शरी इज लेसर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेसर देन प्राइमरी, मतलब हाइड्रेशन वाले फैक्टर है। जब इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करोगे इन एक्वस सॉल्यूशन, विल फाइंड आउट दैट सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी एलिफैटिक अमीन दे रखा है या प्राइमरी या टर्शरी दे रखा है, तो तुम किस पे अपना लाइक वोट दोगे? सेकेंडरी या टर्शरी? Secondary. वेरी गुड, Secondary. वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर CH3 की जगह उन्होंने इथाइल ग्रुप दिया, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट NCERT डेटा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ I do have two ethyl groups over there, and here I have three ethyl groups. Now, in case of primary, secondary, and tertiary, again the most basic will be primary. अब इसमें सॉरी, मोस्ट बेसिक विल बी सेकेंडरी। Secondary. प्राइमरी और टर्शरी के बीच में कंपटीशन है। इसमें क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज्यादा बड़ा है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है, और प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो अच्छा बेस हो जाता है। गेटिंग इट? Okay. इट Okay. मींस दैट पहला तो सेकेंडरी रहेगा, उसके बाद टर्शरी एंड देन प्राइमरी। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसमें टर्शरी और प्राइमरी आपस में पोजीशन चेंज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई डाउट इसके अंदर? गाइस, इसके अंदर कोई डाउट? No, no. वेरी Tertiary will be second and primary will be third then. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इन केस ऑफ ethylamines. Got it? Yes, sir. Now understand one thing, if you got these things correctly, so you come to know that priority should be given to negative charge. Then aliphatic amines are more basic than aromatic amines. Then you know in aliphatic amines also what is the order. Agreed? Yes. Very good. Shall I rub this?
शेयर अप दिस। Okay. लिखना है तुम लोगों ने बेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा है अगेन, दिस डेटा ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। Yes, sir. Okay. Now come here. Now understand here. Again I'll ask you, एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो बेसेस हैं, एक बेस स्ट्रांग है एक वीक है, तो जो बेसिक एक्शन है मॉलिक्यूल का वो कौन शो करेगा, स्ट्रांग बेस या वीक बेस? Strong base. वेरी गुड। Base. एक बात बताओ, इसके अंदर ना आई हैव अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, आई डू हैव अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, आई डू हैव अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, आई हैव अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, आई हैव 2 नाइट्रोजन ओवर देयर, आई हैव 3 नाइट्रोजन ओवर देयर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब एक से ज्यादा नाइट्रोजन होता है ना, सबसे पहला टास्क तुम्हारा क्या होता है, उन नाइट्रोजन में से ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, गेटिंग इट? Yes. जो ज्यादा बेसिक है तो बेस कैरेक्टर वो वाला नाइट्रोजन एटम डिसाइड करेगा, गेटिंग इट? Yes. Very good. Now understand that this is aliphatic, this is aliphatic, this is aromatic, but later on. This is what that, resonance stabilized. Okay, resonance is there in all the three. I'll do one thing. I'll put one extra molecule so that you should not get confused when this molecule also comes in the exam. I'll just name it as F के बाद क्या आता है? G. Good. Now listen. बिग बा बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो रहा है? तुमको रेजोनेंस G, कहाँ, D. दोबारा बोलो हिंदी में। सर जी पे हो रहा है, डी जी पे हो रहा है, जी पे हो रहा है, हाँ आगे डी पे हो रहा है, डी में हो रहा है, आगे ई में भी हो रहा है, ई में भी हो रहा है, चलो ई में भी हो रहा है, आगे एफ में नहीं है, एफ में नहीं है, कई को नहीं है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, चलो ठीक है। अब एक और बात बताओ, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये तो एलिफैटिक है, करेक्ट? और देखा Yes. जाए तो दिस अमीन इज प्राइमरी अमीन, एग्रीड? सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमीन है, गेटिंग इट? Yes. वेरी गुड। अच्छा ये एरोमेटिक अमीन है। अच्छा एक बात तो यहाँ पे क्या लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है क्या रेजोनेंस से? देखो पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस है क्या? हाँ. मत बोलो, सुनो अभी, हमेशा एक रूल याद रखना, ठीक है? अरे ओके, हमेशा ना एक रूल याद रखना, ठीक है? इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या है? अगर कोई भी ऐसा एटम है, ठीक है, लिसन टू इट, आई जस्ट ट्राई टू मेक योर लाइफ सिंपल, ठीक है? देखते हैं कहाँ तक सिंपल बना सकते हैं। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। नाउ द क्वेश्चन इज इन दोनों लोन पेयर में से कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, दोनों कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे हैं? देखो यार, कोई भी अगर ऐसा एटम है ना जो कि ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है रिंग के साथ एंड उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ना वो डीलोकलाइज नहीं करेगा, मतलब इधर नो रेजोनेंस। रीजन, मतलब रीजन बताता हूं, इतना समझ में आया?
कि अगर कोई भी एटम है जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो ऑलरेडी रिंग के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं करेगा। बात समझ में आई? ओके। हाँ, आप पूछो काय को, मतलब क्यों? क्यों? हाँ, यह बताओ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे बोलो, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन? अरे बाबा, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन? 2, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने लोन पेयर हैं? 1, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो 2+1 समीशन कितना होता है? 3, अच्छा, 3 मतलब क्या हो गया? sp sp2 sp3 क्या हो गया? sp2 sp2। 2 मतलब sp, 3 मतलब sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल, क्या? ट्राइगोनल। बेटा sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? अरे हाँ या ना? yes sir, हाँ सर। sp2 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहता है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हो गया 2 बॉन्ड इधर और 1 लोन पेयर इस साइड। करेक्ट? करेक्ट। yes sir, अब एक बात बताओ, अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो जो पाई बॉन्ड है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन, प्लेन ऑफ द रिंग। देखो, जो रेजोनेंस होता है ना पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? हमेशा रिंग के परपेंडिकुलर होता है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये जो लोन पेयर है ये वाला जो लोन पेयर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक हाइड्रोजन है नीचे और एक लोन पेयर है ऊपर। अगेन ये एक पाई बॉन्ड है, ध्यान से समझना है इस चीज को। जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है ना, इसका जो लोन पेयर है इट इज इन द सेम प्लेन एज दिस p ऑर्बिटल, और ये जो लोन पेयर है इट इज इन दिस प्लेन विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर प्लेन पे। तो ये जो ओरिएंटेशन है ना इस लोन पेयर का, वो p ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में। तो क्या परपेंडिकुलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं क्या? no, तो जो नाइट्रोजन है जो कि ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो ये जो p ऑर्बिटल होंगे और ये जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर हाँ, अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो रेजोनेंस नहीं करेंगे। वेरी गुड, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। yes sir, ओके, हटाओ इसको। okay, हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now listen to it properly. तो क्या ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज ये नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है क्या? yes, हाँ, इसमें जो लोन पेयर है ना वो बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, जिसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड सी है ना वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन। करेक्ट? ये सी डबल बॉन्ड सी यहाँ से sir, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एग्रीड? yes sir, वेरी गुड। नाउ हियर, क्या यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? हेलो? yes sir, हाँ, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ। oh, करेक्ट। अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन डाल दूंगा तो ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया ना। जिस yes sir, तरीके से सी डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसी तरीके से सी डबल बॉन्ड NH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा।
Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं है? है. वेरी गुड। एक बार बताओ, यहाँ पे आ गया O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस हुआ तो ये आ गया CNH माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। कोई डाउट? No. वेरी गुड। नाउ अगर तुमको इतना समझ में आ गया, ठीक है, देन यहाँ पे कितनी रेजोनेंस है? बेटा कितनी रेजोनेंस है यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में? 3. 3। अच्छा, ये पाई सिग्मा 3 3 कैसे रहे? 2. हाँ 2। 3 कैसे? पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा लोन पे, राइट? Yes, sir. हाँ, एक बार बताओ, अगर ये अपना लोन पेयर देता है इस नाइट्रोजन को यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा NH2 पॉजिटिव, CNH नेगेटिव, NH2। अगर ये देता है इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आ जाएगा NH2 CN नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यार एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन डिसाइड करेगा बेसिक एक्शन या पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन डिसाइड करेगा? Negative. एग्जैक्टली तो मतलब ये जो बेसिक कैरेक्टर है ना, वो ये वाला नाइट्रोजन गवर्न करेगा। गेटिंग इट? दिस नाइट्रोजन विल गवर्न द बेसिक एक्शन। Here also this Yes. nitrogen is gaining the negative charge. So negative charge nitrogen will decide the basic nature or positive charge nitrogen will decide the basic nature. Negative. Very good. यहाँ पे I'm getting only positive charge on the nitrogen. Understood? Yes. Now tell me according to you guys. अच्छा, here also. Which group is extracting the electron from nitrogen? 3 double bond O. Or which group is extracting the electron from nitrogen? 3 double bond O. Hey, boom, इधर in this G group. C double bond C. C double bond C. So which is the better electron withdrawing group? C double bond C or C C double double bond? bond O. Very good. Double bond O. So where the positive charge, where the electron will be more lost by, what is that? Nitrogen. C double bond O. इतना समझ में आया? और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही तो वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एग्रीड? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक कौन सा? Secondary. Secondary. ग्रेट। अब इसमें जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है और प्राइमरी अमीन इसमें जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ज्यादा बेसिक कौन सा और क्यों? Aromatic वाला. कई को? Because aromatic is more basic than aliphatic. अरे वैसा तो नहीं है, वो एलिफैटिक अमीन ज्यादा बेसिक होता है बिकॉज रेजोनेंस वाला केस आता है, दोनों में रेजोनेंस नहीं है, राइट? Yes, yes. अब जहाँ पे रेजोनेंस नहीं है ना, तो वहाँ पे देखो, अब रेजोनेंस नहीं है तो सेकंड इफेक्ट क्या देखते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? Yes. हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तो तीसरा इफेक्ट कौन सा देखते हो? Steric. स्टेरिक। स्टेरिका नहीं, इंडक्टिव। क्या देखते हो? क्या देखते हो? Inductive. हाँ, इंडक्टिव। तो एक बात बताओ, ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है? बेटा ये Minus अल्काइल I. प्लस आई है तो Plus इलेक्ट्रॉन I. हाँ बेटा प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा. ज़्यादा. बढ़ेगी। यहाँ पे दो जगह से प्लस आई है तो ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो तुम्हारा प्लस साइज शो करता है कि माइनस साइज शो करता है? sp2 जो है वो sp3 से
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, करेक्ट। sp3 डोनर होता है, sp2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Gain. हाँ विड्रॉ करता है, तो भी क्या होगा, sp2 नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, मोलर, अरे जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज, हाँ कम होगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, इंडक्टिव या रेजोनेंस, Inductive. हाँ अरेंज करके दो इसको बेसिक ऑर्डर में, सबसे बड़ा बेसिक कौन सा है इधर, 2 डिग्री वाला, which one, which one, 2 डिग्री वाला, दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया, कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक, Second degree. न्यूट्रल या नेगेटिव, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, न्यूट्रल वाला या नेगेटिव, नेगेटिव, Negative. हाँ तो यहाँ पे Negative. कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक रहेगा, क्विक रिकैप, प्राइमरी सेकेंडरी इंडक्टिव है, इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नाइट्रोजन से, सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नाइट्रोजन से, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, गेटिंग इट, रेजोनेंस Yes. से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, एग्री। Sure. तो अब मुझे बताओ बेसिक एक्शन क्या होगा, बेसिक ऑर्डर, और ई सबसे ज्यादा होगा, कौन, ई वाला, अच्छा ई जो है ना, ई के अंदर ये वाला जो नाइट्रोजन है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम वन साइड, तो यही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे रहे हैं, तो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा एफ, F है, वाला. तो ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, F वाला. एफ वाला, उसके बाद E वाला, वाला. ई वाला, अरे इसको क्या हो गया, रुको एक मिनट, हाँ एफ वाला, देन ई E वाला, वाला. उसके बाद B. हाँ बी, बी फॉर बफून, आगे आगे ए, ए, A. आगे C. वेरी गुड, सी फॉर चेन्नई, आगे आगे ई, D. ई तो हो गया ना, डी या फिर जी, सॉरी, डी, अच्छा डी में कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, सी डबल बॉन्ड, और जी में कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होगा, डी पे, D. हाँ तो ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, G. हाँ जी, जी हुआ, राइट, गेटिंग इट, Yes. या That's me. D. हाँ, ए अंडरस्टूड द लॉजिक, Yes, sir. ये तुम्हारा जी है एनिलीन, ठीक है, चले आगे, Yes, sir. नाउ लिसन, वी हैव टू स्टार्ट विद द आइसोमेरिज्म चैप्टर, ठीक है, फिर ऑल्सो ओनली विल स्टार्ट,
नाउ लिसन, तुम में से किसको सॉहर से फिशर, फिशर से सॉहर्स बनाना आता है और फिर न्यूमैन बनाना आता है? किस किस को आता है सब? फिशर से सॉहर, सॉहर से न्यूमैन, किस किस को आता है? आता है? मुझे इसमें बहुत Answer. कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है? हाँ। ओके, एक काम करते हैं बेटा, पहले प्रोजेक्शन कन्वर्जन्स करते हैं, ठीक है? कन्वर्जन्स बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्शंस, ठीक है? ठीक है। Now, listen, I'll do one thing. I'll draw a Fisher projection. Fisher projection का मतलब क्या होता है? What do you mean by Fisher projection? Listen, let's say I have taken CH3 here, H here, OH here. ये आंधी तूफान कहाँ आ रहा है? अगेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्शन, ठीक है? फर्स्ट आई डू वन थिंग, आई ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन जिसके अंदर CH3 डाल दिया ऊपर, OH लेफ्ट, H राइट, एंड देन लेट्स से यहाँ पे डाल दिया फ्लोरीन, यहाँ पे डाल दिया क्लोरीन और यहाँ पे डाल दिया COH। एग्रीड? यस। अच्छा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन फिशर प्रोजेक्शन? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है ये? क्यों है ये? क्या है ये? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो बॉन्ड्स वर्टिकल में होते हैं उनका क्या मतलब होता है? जो बॉन्ड्स तुम्हारे हॉरिजॉन्टल में होते हैं उसका क्या मतलब है? सर वो प्लेन ऑफ पेपर के नीचे। लेकिन ये जो है ना, ये जो वर्टिकल होते हैं बॉन्ड्स, दे आर एक्चुअली अवे फ्रॉम यू, गेटिंग इट? So CH3 is going inside the plane of the paper, and these bonds are actually towards you, like this. OH, H, or chlorine, fluorine are like this, which is facing towards you. Getting it? Like this. इनको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह शो किया, बट एक्चुअली होते ऐसे। अंडरस्टूड? I'll do one thing. I'll show you with the help of a nice example here. ठीक है? Just give me a minute. I have made a projection also for that. Can you see that? हाँ। नाउ एक काम करते हैं, ठीक है? okay. ये तुम्हारा फिशर है, गेटिंग इट? लेट्स से if I want to draw something over there, what was that on the top? Top पे क्या था? It was CH3, right? Yes, yes. It was CH3. On the right hand side, what was there? I think Cl था. 1 second, I'll just check it out. It was H and OH, ठीक है? तो it was H, H और यहाँ पे OH. कोई डाउट? No. वेरी गुड। नीचे क्या था? COH, F क्लोरीन। तो ये जो है ना COH, वो पीछे की तरफ है, गेटिंग इट? जिसको वर्टिकली शो किया है, COH एंड देन फ्लोरीन, H, क्लोरीन। अंडरस्टूड? दिस इज एक्चुअली फिशर। फिशर के अंदर क्या है, इस तरीके से जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो यहाँ पे दिस इज द CH3 मॉलिक्यूल विच इज अप. इट्स नॉट एक्चुअली अप, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू लाइक दिस. अंडरस्टूड?
These two bonds are towards you like this, OH and H. These two bonds are towards you, fluorine and chlorine. So chlorine here, chlorine here, fluorine here. And the back side, पीछे की तरफ, this is COH. Now tell me one thing, these bonds are towards you or away from you? Towards us. Towards Towards us. you. So shall I do one thing? I can write this fissure like this, कि ये भाई साहब पीछे जा रहे हैं, ये दोनों भाई साहब तुम्हारे को फेस कर रहे हैं. फेस मतलब it is a wedge, OH and H. Down, again wedge, chlorine and fluorine, and on the back side you have COH. Any doubt on that? No. अच्छा, अब ना मुझे इसको ना सोहर्स में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? सोहर्स. ठीक है. अब एक बात समझना, ठीक है, आई जस्ट रब दिस ऑफ. Just understand one thing, how to draw it. You just do one thing, drop the molecule down. तुम ना मॉलिक्यूल को नीचे ड्रॉप कर दो. ठीक है. जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूं, जो जो चीज पीछे की तरफ है, जैसे CH3 है, जो चीज पीछे की तरफ है वो कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है? ऊपर. वेरी गुड. और जो COH था पीछे की तरफ, उसको भी देखो कहाँ आ रहा है? ऊपर. ऊपर. तो ये दोनों चीजें CH3 और COH ऊपर आ जाएंगे. Yes, sir. एंड जस्ट टिल्ट द मॉलिक्यूल स्लाइटली. ये सोर्स हो गया. जो चीज राइट में थी वो राइट में रहेगी. देखो ना, ऐसे था. ठीक है. तो हाइड्रोजन राइट में था, तो ये हाइड्रोजन राइट में रहेगा. इधर दिख रहा है ये OH कहाँ पे था? लेफ्ट में. तो ये जो गोल्डन बॉल है वो कहाँ रहेगा? लेफ्ट में. लेफ्ट में. हल्का सा टिल्ट कर दो. इसे सोहर्स कहते हैं, राइट. तो ये CH3 ऊपर आ गया, ये COH ऊपर आ गया, ये OH लेफ्ट में है, ये F राइट में है, ये क्लोरीन लेफ्ट में है, ये फ्लोरीन राइट में है, ये COH ऊपर चला गया. कोई डाउट? No. No, तो sir. जो चीजें पीछे थी ऊपर चली गई. लिसन, दिस कार्बन इज ऑन द टॉप, राइट. व्हेन यू ड्रॉप दिस डाउन, तो दिस कार्बन विल फेस टुवर्ड्स यू. अगर Yes. इसको तुम नीचे गिरोगे तो ये कार्बन तुम्हारे को फेस करेगा ना. Yes. और ये कार्बन कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ, राइट. ये वाला. कैन यू सी दैट एरो? No, sir. एरो 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 नहीं दिख रहा था. रुको. तो आप कोई कर्सर घुमा रहे हो? हाँ, मैं कर्सर घुमा रहा था तब से. नहीं दिख रहा है. हाँ, तो कोई बात नहीं. अभी दिख रहा है. हाँ सर. Yes, हाँ, तो sir. जो चीज ऊपर थी, ठीक है, पीछे की तरफ थी दोनों, वो ऊपर की तरफ आ गई. करेक्ट. Yes sir. जब मॉलिक्यूल को तुमने ड्रॉप किया तो ये कार्बन ऊपर की तरफ था, तो इट विल फेस टुवर्ड्स यू. दिस कार्बन जैसे ही ड्रॉप करोगे तुम्हारी तरफ आ जाएगा. गेटिंग इट? Yes sir. और ये कार्बन नीचे की तरफ था, ये कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. Now understand here, when I drop this molecule down, this CH3 and this COH becomes on the top, right? Just tilt the molecule slightly. H is on the right, it'll remain on the right. OH is on the left, it'll remain on the left. Fluorine is on the right, it'll remain on the right. Chlorine is on the left, it'll remain on the left. And yeah, COH on the top. Correct? समझ में आया फिशर कैसे बनता है? Yes, और sir. फिशर से Yes, sir. सॉल्व कैसे बनता है? Yes. किसी को कोई डाउट इसके अंदर? No. Very good. Now it's very simple. Clear all drawings. This is Fisher, right? Yes. What do you have to do? Just drop the Drop the molecule down, you know, and tilt it slightly. That's it. This is your sawhorse. Got it? Yes, sir. Getting a point? Simple. Yes sir. अच्छा, अगर न्यूमैन बनाना है तो? अगर न्यूमैन बनाना है तो
The carbon which is towards you becomes dot. The carbon which is away from you becomes circle. Circle. Getting it? On that thing, you have on the top this molecule, on the right hand side, on the left hand side, again on the right hand side, left hand side, and on the top. Getting it? दिस इज योर न्यू मैन. जो पास वाला कार्बन है वो डॉट होता है और जो पीछे वाला कार्बन है वो circle. विजुअलाइजेशन हो गया. Sir. Shall we move back to our notebook? Okay. समझ में आया? Yes. Okay. So fine. We'll come here. ठीक है? Can you see this? Yes. Okay. Now tell me. I want to draw that. What is that? इसका Sohor's projection, right? I want to draw the Sohor's projection of it. क्या करना है मेरे को? Just drop the molecule down, right? Yes. जैसे मैंने मॉलिक्यूल को ड्रॉप किया तो मेरे पास मुझे पता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? करेक्ट? Yes. अच्छा बताओ ये वाला ये यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन ऑन द टॉप क्या आएगा? CH3. CH3 बिकॉज ये कार्बन तुम्हें देख रहा है, राइट? इधर क्या आएगा? इधर COH. वेरी गुड. On the right hand side, what you will get? H. H. On the left hand side, what you will get? OH. Very good. On the right hand side, what you will get? F. Very good. On the left hand side, what you will get? Cl. Understood? Understood? Yes. Now listen, I want to draw the Newman of it. नहीं मुझे ना न्यूमैन बनाने का इसका. ठीक है? तो what I will do, I will stand here and look the molecule from this direction such that this carbon atom will face. Towards me. I'm so proud of you. The carbon atom which is facing towards me becomes what? Dot. And the carbon atom which is facing away from me will become Circle. circle. The dot. Tell me on the dot which thing will be on the top. CH3. So it will CH3. be according to me CH3 will be here and this will be OH and this will be H. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. And पीछे की तरफ ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? COH. COH. और राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है? Cl. राइट हैंड साइड. F. Okay. Now I guess you understood. आगे से गलती तो नहीं करोगे ना? सॉर्स और हॉफमैन में कैसे कन्वर्जन किया? नहीं. हाँ. सिंपल. Yes, sir. चलो ग्रेट. अभी तुम्हारे ऊपर है. देखो यार सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है तो इट इज ऑन यू. सपोज मैंने ना इस वाले कार्बन को रोटेट कर दिया ताकि COH यहाँ पे आ जाए. कोई दिक्कत? No. तो ये क्लोरीन किधर जाएगा? ये फ्लोरीन किधर जाएगा? Chlorine की जगह. वेरी गुड. और ये क्लोरीन कहाँ जाएगा? ये. COH की जगह. हाँ तो मतलब देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल में और उस मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है बिकॉज मैं बॉन्ड नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं जस्ट रोटेट कर रहा हूँ. सिग्मा बॉन्ड कहलाऊं. और रोटेशन से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है ना? Yes, sir. अदरवाइज मेरी गो राउंड के अंदर घुसते और पता नहीं कुछ और बन के बाहर आ जाते, राइट? हाँ sir. ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं. हाँ. तो COH इधर आ जाएगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा एंड क्लोरीन ऊपर चला जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि अलग अलग है? Same है. सेम है. दैट्स अंडरस्टूड. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So
This is the source and everything. Now Newman we have done. I'll give you one question and just tell me which of the following options are correct over here. Getting it? Okay. Yep. In the interconversion thing. And interconversion is very important. Do you know why? Do you know why? बदतमीजों. Why? नहीं पता. In SN2E2, in SN1, in many mechanisms, right? You have stereochemistry involved in it, correct? Yes, sir. Then without stereochemistry, can you predict the correct product which is obtained from that? No. Getting it? Anyways, listen. Uh, question देते हैं. We were giving you a question. I'll give you a Newman projection. Okay. Yep, Newman. Take care. I just want you to just play with this molecule, right? Just don't get scared with it. So this is towards you, right? Because this is coming from dot. तो let's say यहाँ पे COH ले लो, यहाँ OH ले लो, यहाँ H ले लो. ये बैक साइड कार्बन है. यहाँ पे काम करो, OH ले लो, H ले लो और CH3 ले लो. ठीक है. मुझे ना इसका फिशर चाहिए और मुझे ना इसका सॉर्स भी चाहिए. गेटिंग इट? Okay. हाँ, चलो ट्राई सॉल्विंग इट. Okay, listen now. Tell me, what is the source like you will get over there? अरे कुछ नहीं करना है, इस मॉलिक्यूल को ना हल्का सा टिल्ट कर देना ऐसा, इस डायरेक्शन में, है ना? Yes. जैसे इसको इस डायरेक्शन में लेके जाओगे ना, तुमको क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. रुको एक मिनट. हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये वाला कार्बन एटम ये हो, दिस कार्बन एटम विल बी दिस. करेक्ट? Yes. हल्का सा टिल्ट किया तुमने इस डायरेक्शन में, बस, ज्यादा नहीं. तो इस डायरेक्शन में हल्का सा टिल्ट किया, वो ऐसा था, ऐसा हो गया. गेटिंग इट? और एज इट इज बना दो. तो COH कहाँ है तुम्हारा? ऊपर. पर. गेटिंग इट? इधर इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा? OH. वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? H. पीछू 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 की तरफ CH3 का आएगा. नीचे. वेरी गुड, नीचे आ गया. और अगर ये ऐसे गया तो बाकी के दो बॉन्ड तो ऐसे ही होने, राइट? बिकॉज अपेरेंटली 120 डिग्री एंगल दिखता है इसमें, होता 109.28 है. Yes. ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे OH. वेरी गुड. यहाँ पे क्या आएगा? H. गाइस समझ में आया? Yes, sir. Okay, now how to draw Fisher? Fisher कैसे ड्रॉ करोगे? COH ऊपर होगा. सुनो सुनो, फिशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 1 सेकेंड. हाँ, फिशर बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जो ग्रुप्स लगे होते हैं, है ना? Yes. ये जो दो ग्रुप्स लगे होते हैं ना दोनों कार्बन एटम्स पे, अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो दो ग्रुप्स लगे होते हैं ना दोनों कार्बन एटम पे, तो दोनों का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए ना वो सेम डायरेक्शन में तुम्हारी तरफ होना चाहिए. इट शुड फेस वेयर? Towards us. जब तक वो टुवर्ड्स यू फेस नहीं करेंगे ना तब तक वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होंगे. अंडरस्टूड. तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल रोटेट कर लो या तो खुद रोटेट हो जाओ. गेटिंग इट? Yes. नहीं नहीं सीरियसली, एंड खुद रोटेट होना बहुत सिंपल है. आई टेल यू हाउ. देखो चक्कर क्या है, मान लो कि ये सॉहॉर्स है, ठीक है. यहाँ पे तुमने ले लिया सॉरी, यहाँ पे ले लिया तुमने COH, यहाँ पे ले लिया तुमने CH3.
यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन, यहाँ ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ ले लिया H, ठीक है। अब तुम कहोगे सर एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को पकड़ो और इसको घुमा दो ताकि ये ऐसा बन जाए। गेटिंग इट? Yes. मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं घुमा रहा, भाड़ में जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो ग्रुप्स है ना, कौन से वाले, दीज टू ग्रुप्स, है ना, Yes. मुझे ना इनको अपनी तरफ फेस करना है, राइट। तो मैं इसको क्यों घुमाऊं, मैं अपने आप को नीचे इमेजिन कर लेता हूँ ताकि ये दोनों ग्रुप्स मेरे को फेस कर रहे हो। Yes. आई जस्ट लाई डाउन, मैं नीचे तो देख लेता हूँ यार, ऐसा, राइट। जब तुम नीचे अपने आप को इमेजिन करोगे तो एक बार बताओ, कार्बन एटम ऊपर कौन सा दिखेगा तुमको, ये वाला, CO COH वाला। तो एक बार बताओ, तुमको ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, करेक्ट। राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा तुमको, OH या H, अगर तुम ऐसा लेटे हो इसको फेस कर रहे हो तो। OH OH. सिंपल है ना, मतलब जो चीज दिख रही है, COH ऊपर दिख रहा है तो मस्त तरीके से COH ऊपर लिख लिया, करेक्ट। CH नीचे दिख रहा है, तो तुमने मुझे बोला कि सर OH राइट हैंड साइड में दिख रहा है और H लेफ्ट में दिख रहा है, करेक्ट। yes, sir. यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, F वेरी गुड, फ्लोरीन। और लेफ्ट हैंड साइड में CM गाइस, ये सबको दिख रहा है, Yes. श्योर yes गाइस, अंडरस्टूड दैट पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। तो फिशर के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये जो ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, Horizontal. सेम होनी चाहिए, गेटिंग इट। Yes. हाँ, ये जो दो ग्रुप्स है ना, दे विल बी लाइक फेसिंग टुवर्ड्स यू ओनली। ये नहीं है कि ये तुम्हारी तरफ देख रहा है, दो पीछे की तरफ जा रहे हो और तो फिशर बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों ग्रुप तुम्हारी तरफ फेस करने चाहिए फिशर के लिए, गेटिंग इट। Yes. yes sir. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, आई वांट टू ड्रॉ फिशर, ठीक है। तो मैं क्या करूं पहले, इस मॉलिक्यूल के साथ तो इसको रोटेट करना पड़ेगा, किधर, पीछे वाले कार्बन को करूं कि आगे वाले कार्बन को करूं, पीछे वाला आगे वाले करता हूं, किसको, आगे वाली आगे वाले को करता है, ठीक है। आगे वाले को रोटेट किया बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इफ आई एम रोटेटिंग इट 180 डिग्री, तो जो COH ऊपर की तरफ है वो कहाँ जाएगा, नीचे. नीचे वेरी गुड, एग्जैक्टली अपोजिट, नीचे, करेक्ट। H कहाँ जाएगा, दिस H, COH की जगह. एग्जैक्टली अपोजिट H, है ना, करेक्ट, है ना। जो चीज 180 डिग्री पे होती है वो एकदम अपोजिट चली जाती है। Yes. अब तुम कहाँ खड़े हो गए, ऊपर. ऊपर। अच्छा, तुमने अपना जो फेस है, इन शॉर्ट, तुमने अपना जो फेस है और तुम्हारी मुंडी है वो कहाँ रखोगे, इधर या इधर, दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, सेकंड वाला दोनों सही हैं, तुम कहीं भी रख सकते हो, गेटिंग इट। Yes. इट इज ऑन यू, यू कैन राइट कीप योरसेल्फ एनीवेयर। तुम सेकंड वाला चूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं दोनों फर्स्ट से भी लेते हैं और सेकंड से भी लेते हैं, कोई दिक्कत। तो नहीं. अगर मैं सेकंड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड वाला ओरिएंटेशन, विच थिंग विल यू सी ऑन द टॉप, COH वेरी गुड। विच थिंग विल यू सी ऑन द बॉटम, yes हाँ, CH3. okay. On the right hand side, what the hell you will be seeing over there, OH one second, OH, हाँ, OH। on the left hand side, H। अच्छा, नीचे वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा तुमको, H H. वेरी गुड। Hey, you have good imagination, right? Then why? Anyways,
by orientation 1. This is by orientation 2. By orientation 1, tell me. ऊपर क्या दिखेगा? CH3. वेरी गुड. नीचे क्या दिखेगा? CO. अच्छा, ऊपर में ना राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है तुमको? OH. वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड पे? H. H. राइट हैंड साइड में नीचे? H. H. लेफ्ट हैंड साइड पे? OH. अंडरस्टूड. अरे दोनों सेम है. Yes, ये sir. दोनों फिशर प्रोजेक्शन है ना, वो सेम है. पता है क्या? एक और चीज सुन लो, ठीक है? इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फिशर प्रोजेक्शन पार्ट. Where the hell were we? Here only. Yeah. Listen, guys. I'll take this molecule, ठीक है? ये फिशर है, करेक्ट? Yes. अब चक्कर क्या है? तुम फिशर मॉलिक्यूल को ना ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हो. पूछो क्यों? ऐसा 180 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. पूछो क्यों? क्यों? यह बताओ, फिशर का मतलब क्या है? दीज ग्रुप शुड फेस, 1 सेकेंड. फिशर का क्या मतलब है कि दीज ग्रुप्स शुड फेस टूवर्ड्स यू. ये क्या तुमको फेस कर रहे हैं क्या? नहीं sir. नहीं. फिशर का मतलब यही होता है कि द ग्रुप शुड फेस टूवर्ड्स यू. तभी ना फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ना हम क्या बोलते हैं कि यार ये वाली जो रोटेशन है ना अलोंग दिस एक्सिस बाय 180 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं. नहीं है. पूछो क्यों? These groups will face They won't face the. Away from us. away from you, and Fisher doesn't allow that. Fisher बोलता है कि वो तुम्हें ही फेस करने चाहिए. गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा. अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तुमको, if you go understood that part, right? 1 second. If you understood this part, just tell me one thing. Is it possible to have this kind of rotation? Yes sir. क्या मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ? Yes, sir. है ना? By 180 degree I can rotate it, correct? Yes sir. Because after rotation still the group should face. Towards you. Towards. Getting it? Understood? After rotation Yes. also the group will face towards you, so it is peaceful. Agreed? Yes, sir. Chalo, nice. Now understand here. 1 second now. Now understand, the group should face towards you, like so in this Fisher projection whatever we got over here, ठीक है? This Fisher projection, ठीक है, just rotated by 180 degree. तो इसको ऐसा घुमा सकते हैं और इसको ऐसा घुमा सकते हैं, करेक्ट? Yes. वेरी गुड. आज टेल मी, ऐसा ऐसा घुमाने के बाद कैसा मॉलिक्यूल बनेगा? COH. OH ऊपर. ऊपर होगा CH3 नीचे. Okay, 1 second. This stupid thing got hanged. ठीक है? हाँ, अब ठीक है. Now tell me, कौन सा क्या होगा? COH ऊपर होगा. COH ऊपर होगा. चलो ठीक है, COH ऊपर आ गया. CH3 नीचे. नीचू. ओके, इस साइड क्या आएगा? इस साइड इस पर्टिकुलर साइड पे क्या आएगा? H. 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 यहाँ पे क्या आएगा? OH. वेरी गुड. यहाँ पे क्या आएगा? OH. वेरी गुड. यहाँ पे क्या आएगा? H. बेटा 180 डिग्री का मतलब होता है ये इस तरीके से चला जाता है. एग्जैक्टली अपोजिट, राइट? इट गोज डायरेक्टली अपोजिट. ऐसा ऐसा ऐसा. गेटिंग इट? तो यार बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
Guys, am I audible? Check 1 2 3. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं. अरे मैंने एक को तुमने ओरिएंटेशन 1 से बनाया था, एक को तुमने दूसरे से बनाया था. मैंने क्या कहा था, चाहे ऐसा खड़े रहो चाहे ऐसा खड़े रहो, फर्क नहीं पड़ता. दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है ना, Yes. तो फर्क कैसे हो सकता दोनों में, राइट? Yes. Understood the whole logic behind all this discussion. So start playing with the molecule, don't get scared with it, you can do better. Understood? Yes, sir. हटाओ इसको. Okay. ये बच्चा पार्टी लिख लिया सबने? लिख लिया? Sir, 2 seconds. Okay, take 2 seconds. Done, sir. Okay, so now what we'll do, we will solve a question. I guess you can manage with the projections right now, isn't it? Yep. Okay. Now question, right? Question. Hey, what the hell alcoholic KOH do with alkyl halide? Suppose I have this particular alkyl halide, ठीक है? तो what alcoholic KOH do? Alcoholic KOH alkyl halide के साथ क्या करता है? कौन सा रिएक्शन करता है? रिएक्शन. अरे बेटा क्या करता है अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड्स के साथ? इज अ गुड बेस. व्हाट इट शुड डू? Replace halogen. अल्कोहलिक है बेटा, एक्वस नहीं है, याद रखना. अल्कोहलिक KOH ऑलवेज डू E2 एलिमिनेशन. क्या करता है? E2 elimination. E2 एलिमिनेशन इज एंटी पेरिप्लेनर. What do you mean by anti-periplanar? That hydrogen and chlorine will be gone, minus HCl happen, but the orientation of hydrogen and chlorine should be anti-periplanar, मतलब 180 degree to each other. Understood? Yes. Very good. Guys, इतना समझ में आया? Yes. Okay, then I'll be getting C, single bond C, double bond C, and alkene I'll be getting. Any doubt? No, sir. No. Acha, now the crux is Sadzef alkene will form. What is Sadzef alkene? Most substituted. And what is that? Anti-periplanar elimination. ठीक है? So these two things we have to understand properly. ठीक है? आगे चले. I'm just giving you an application of Hoffman projection over there. So the life becomes simple after this. You just write down alcoholic KOH1 wala. We'll do that thing in detail, and we'll come to know that alcoholic KOH can do Hoffman product also. But what are the conditions? What not? What are the other factors which will govern that thing? We'll do it later on. But अभी इतना समझ लो कि alcoholic KOH alkyl halide के साथ E2 elimination देता है, which is anti-periplanar. Getting it? Yes, sir. Okay. आगे चलें. Fine. Now listen. Sadzef product का मतलब होता है, suppose you have butane, 2-chlorobutane, right? Now what I did, I added alcoholic KOH. Here also I have added alcoholic KOH. Alcoholic KOH extract acidic hydrogen from the beta carbon.
Now, obviously, the carbon attached with the halogen that to a functional group, that carbon is an alpha carbon. The carbon adjacent to alpha carbon are beta carbons. Agreed? Yes, sir. Yes. Now, the hydrogen attached to the beta carbon are acidic. Reason being, remove H plus, check the stability of negative charge. If you removed H plus, checking the stability of negative charge, this negative charge will be stabilized by reverse hyperconjugation. क्या बोलते हैं इसको? Was happening. Reverse hyperconjugation. So obviously beta hydrogen will leave, and if the beta hydrogen is leaving, simultaneously pi bond will form and halogen will leave. Getting it? Loss of hydrogen and loss of halogen is happening at what angle? हाइड्रोजन नीचे से गया, हाइड्रोजन ऊपर से गया, तो एंगल क्या है? 180. 90. 180. इसको बोलते हैं एंटायर पेरीप्लेनर. क्या बोला जाता है? Entire periplanar. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड, दो बीटा हाइड्रोजन है. अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन गया, एक क्लोरीन तो एक ही ना, क्लोरीन गया, तो मेरे पास एल्कीन आएगा यहाँ पर. गेटिंग इट? अगर वो वाला हाइड्रोजन गया, दिस लेट्स से पाथवे 1, दिस इज पाथवे 2, तो दिस इज पाथवे 1, this is pathway 2, so I'll be getting this alkene. Getting it? Yes. ये जो alkene है, it is stabilized by 2 hydrogens, that is 2 hyperconjugations. Agreed? Yes. और ये जो alkene है वो 6 hyperconjugation से stabilized है, तो इसको ना Sedgwick alkene कहते हैं. Getting it? और Yes. इसको Hoffman कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. ये तो मैंने तुमको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया. किसका? E2 का. ठीक है? हेलो? ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ढंग से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. चलो, लेट्स से दिस इज ब्रोमीन, this is CH3, this is hydrogen, this is deuterium, this is hydrogen, and let's say this thing is C2H5. I'm treating this molecule with alcoholic KOH, which is the base. Obviously E2 elimination takes place. Getting it? Yes. I'm asking what will be the major product. ठीक है? Will you give a try or should I solve it? We'll give it a try. Okay. Try it out. अच्छा, एक बात बताओ, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, करेक्ट? Yes. कौन से बीटा कार्बन होंगे? द कार्बन. CH3 वाला और इसके नीचे वाला. वेरी गुड. एंड मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नीचे वाले से जाएगा कि ऊपर वाले से जाएगा? कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ रहेगा? कहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा? नीचे वाला. नीचे वाले से. अब नीचे वाले में ना दो ऑप्शन है, एक CH बॉन्ड है और एक CD बॉन्ड है. तो कौन सा बॉन्ड इजीली टूटता है, CH या CD? Yes. CH बॉन्ड. हेवियर आइसोटोप्स हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं. तो CD बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है ना, bond energy of CD bond is actually greater than bond energy of CH bond. Any doubt? No. तो तोड़ना कौन सा सिंपल रहेगा, CH या CD? CH. अच्छा, अब इसको ना सॉल्व करने के लिए ना इसका हॉफमैन बनाओ. इतना कर सकते हो? अगर Yes. मैं इसका हॉफमैन बनाऊंगा तो एक बार बताओ, ऐसा बनेगा, करेक्ट? एग्रीड? Yes. ऊपर क्या आएगा? CH3. वेरी गुड. इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड में? Br. वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? वेरी गुड. ऊपर क्या आएगा इधर? C2H5. वेरी गुड. राइट हैंड साइड में क्या आएगा? B. वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? H. वेरी गुड. नाउ ये बताओ, ये जो एलिमिनेशन है एंटाई है कि सिन है? मतलब सेम साइड से जाएगा कि एंटाई से जाएगा? Entire.
एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। अब एंटी एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन के लिए जो बी आर और एच लीव कर रहे हैं, दे शुड बी ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड। Opposite. हाँ, तो एक काम करते हैं, ब्रोमीन को ऊपर लेके जाएं और एच को नीचे लेके आए तो अपोजिट हो जाएगा। Yes. अगर मैं ब्रोमीन को ऊपर लेके जाता हूँ ऐसा घुमा के, ठीक है, व्हाट आई डिड, आई जस्ट rotate this bond. Sigma bond rotation is possible, right? Here also I bring this hydrogen down, this deuterium will go up, this C2H5 will come here, correct? Say yes or no? Yes. Very good. Just tell me, I am bringing the bromine up. So bromine अगर ऊपर आया, तो on the right hand side, what you'll get? Hydrogen. H. The left hand side, what you'll get? CH3. Very good. Acha, if I am bringing the hydrogen down, then on the right hand side, what you'll get? B. D. On left hand side, what you'll get? Yes. C2H5. Now understand one thing, HB are leaving from anti-position, right? In the very same orientation, I'll be getting an alkene. In that alkene, hydrogen is facing towards you, correct? Yes. Deuterium is facing towards you. That means whenever this alkene formation takes place, hydrogen and deuterium will be on the Right side. same side, right? Same side. Yeah. Because alkene is planar molecule right now, isn't it? Yes. So if it's the planar molecule, then obviously, if hydrogen is on it's towards you, then deuterium is also towards you. Getting it? If Yes, CH3 is on the away side, then it'll be like C2H5. So what I'm getting, I'll be getting a cis alkene. Any doubt on that? Yes. So this is how you deal with stereochemistry in reactions. जब तक प्रोजेक्शंस नहीं आते हो ना ढंग से, तब तक तुम कोई जस्टिस उसके साथ बोल दो, कर पाओगे नहीं? अंडरस्टूड? Understood, guys? Yes. So we'll wind up right now. Say thanks and go. Thanks. Yeah. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, sure.